Good evening, all. We are starting the YES Summit. I am Jyotsna. I welcome you all for YES Summit program. It's organized by Adamas University, Kolkata, in collaboration with Youth Ed Foundation. This is sixth YES Summit, which we are happy to take it forward one step ahead. And YES Summit is now for the Accelerator YES Summit, as well as we are supporting incubators through the program. I like to introduce our first speaker, Dr. Saptarshi. Is Associate Director of Incubation, Chief Coordinator EUA Center, Associate Professor Microbiology, and Academic Collaboration Lead for Bosch. Is a passionate lover of science and would like to contribute in the field of science for human welfare. He is presently involved in process of entrepreneurship development and creating startup and culture, along with providing mentorship and guidance of Center for Incubation at Adamas University. I like to welcome you, sir, and take it forward. I'll stop my sharing and you can share your slides. Welcome all for the event. Thank you for the kind introduction. It is my pleasure to be present today in the inaugural session, and the speaker for today is none other than our beloved Mr. Matthew Mattem, who has been taking extraordinary strive towards social entrepreneurship. Now, before we start the session, a little bit to introduce. Adamas University is in its 6th year of operation. That means we are a relatively new university, but with a different outlook. We know that there are several problems the world is facing, and so is our country, our motherland, India. And one of the problem is lack of jobs. So the youth of today cannot, all of them cannot be provided a job. So what is the alternative? The alternative that we think is viable is nothing but entrepreneurship. That means we need to create the youth of the country as job giver rather than job seeker. And that has to happen, or that has to coordinated through every strata of the society. We require big industries, multinational companies, as well as we require smaller business unit for the sustainability of the society and livelihood of each and every individual or citizen of the country. Therefore, we have joined hands with several like-minded organizations like Youth Ed Foundation, which has been working relentlessly on this domain. At our university, we have a center for incubation where we are trying to grooming people, trying to groom individual so that they can do a better business, a more ethical business that can earn livelihood for them. We are happy to state that we are supported by BIRAC, Biotechnology Industry Research Assistance Council, through a center called EUA Center, which promotes innovation, translational research, and entrepreneurship development, and all towards making a self-reliant India, that is Atmanirbhar Bharat. So with this little introduction to my university, which is located in Calcutta, and expecting most of you to see in Kolkata during our YES Summit, along with the first Bioinnovator Meet that is going to be held in the month of August 16th to 18th, I now put the stage to Jyotsna to introduce Mr. Matthew Mattem, who is the first speaker of the day. And I welcome you, sir, and I welcome all the participants. And I believe that these master class would help you in growing your business, in shaping your ideas, and tomorrow you will come stronger when you are looking for your venture. Thank you very much. Over to you, Ms. Jyotsna. Thank you, sir, for the lovely introduction of the organization, as well as we all are looking forward for the program and coming to Kolkata. I like to introduce Mr. Matthew Mattem.
So he's a founder of Center for Youth Development and Activities and having experience of more than 40 years in working in social development sector. Center for Youth Development Activities is focused on the development, overall development of youth and working with youth. In 2017, Youth Head Foundation, a special purpose vehicle, were created by him and the team. And last 6 years, we are working for the entrepreneurship development, and he is the guide for us in this. He also worked for 12 years in UA and also is a part of many movements and which are going on which were going on in India, and is also a part of many institute like Connective Organization. He is a trustee over there, and some few more organization where he's a board of trustee. I welcome Matthew, and please take it forward. Yeah. Respected Dr. Saptarshi, Mashumi, Josna, Pooja, and real delegates for the 6th Summit. I think this time we are really happy that the last 5 summits were organized in Pune. The 6th Summit हमने डिसाइड किया जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस एंड इंक्यूबेशन सेंटर के साथ जोड़कर हमको उनसे भी सीखने के लिए एक मौका मिलेगा, इसलिए हमने फर्स्ट टाइम ये समिट महाराष्ट्र से बाहर गया है एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आरएमएस यूनिवर्सिटी hosting this event 16th, 17th and 18th of August. And AS Summit के बारे में डॉक्टर सप्तर्षि ने आरएमएस यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया। बहुत सारे जो लोग इधर रजिस्टर किया है, काफी लोग फर्स्ट टाइम यूथ एड फाउंडेशन के साथ जोड़ने के कोशिश किया, इसलिए मैं यूथ एड फाउंडेशन के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूं। यूथ एड फाउंडेशन एक सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड इन 2017। हमारा फोकस है ग्रास रूट माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको प्रमोट करना। हमारे देश में अलग अलग प्रकार का एफर्ट्स आईआईटी, आईआईएम, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, स्टार्टअप और डिफरेंट प्रकार का एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमने ऐसा सोचा जो ग्रास रूट लेवल, जो एकदम इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज और बॉटम 30% ऑफ द जो पॉपुलेशन है उनके बीच में भी जाकर एंटरप्रेन्योरशिप और उद्यमिता के बारे में बात करना और उनको एक अलग लेवल पर लेके जाने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये उद्देश्य हमने यूथ एड फाउंडेशन शुरू किया और आज 6th समिट का इनॉग्रेल क्लास चल रहा है। सो फार हमारे एफर्ट से 6000 माइक्रो बिजनेस मेंटर्ड एंड सपोर्टेड इन इंडिया। हाउएवर हमने 13,000 से ऊपर लोगों को ट्रेनिंग किया है। 13,000 के ऊपर लोगों को ट्रेनिंग किया। हमारा जो डेली संबंध है 6,000 लोगों के साथ है। ये हमने क्यों शुरू किया? ये हमको जो ग्रास रूट लेवल, जो रूरल, ट्राइबल और अर्बन पुअर कम्युनिटी में जाकर माइक्रो एंटरप्रेन्योर को और छोटे छोटे जो बिजनेस करने वाले को आइडेंटिफाई करना, उनको बिजनेस ग्रोथ के लिए सपोर्ट करना, उनको वेल्थ क्रिएट करना और इसके साथ भी जो डॉक्टर सप्तर्षि ने बताया है, जॉब क्रिएट करने के लिए, दूसरे लोगों को जॉब देने के लिए ऐसा एक एनवायरनमेंट, एक वातावरण हमारा समाज में और हमारा
देश में तैयार करने के लिए यूथ एड फाउंडेशन हमने शुरू किया। एक हमारा ये पूरा एफर्ट्स में हम जो लोगों को आइडिया है उनको आइडिया जनरेट करना, उनका बिजनेस प्लान तैयार करना, उनको बिजनेस प्लान डेवलप करने के बाद जो अलग अलग सपोर्ट सिस्टम है, बैंक से स्टार्टअप इकोसिस्टम और वेरियस अपॉर्चुनिटी को जोड़ना, उनके साथ उनको लिंक करना, ये हमारा एक बड़ा उद्देश्य है। ये उद्देश्य के साथ भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 और 10 जो इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए और 1 मिलियन फैमिली को सपोर्ट करना एक 10 साल में, ये भी हमारा एक बड़ा सपना है। सो फाइनली हमारा जॉइंट एफर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ, अलग अलग एनजीओ के साथ, अलग अलग स्टेट डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन करके एटलीस्ट 1 मिलियन ग्रासरूट माइक्रो बिजनेस टू बी डेवलप्ड एज ए कलेक्टिव एफर्ट्स बाय 2030, अगले 8 साल में। हमको मालूम है हम अभी शायद 12,000 और 15,000 तक पहुंचा है, लेकिन अगले जो 8 साल में हमारा एफर्ट्स है और स्केल एंड स्पीड में लेके जाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जॉइंट वेंचर से। यूथ एड फाउंडेशन में अलग अलग प्रोग्राम्स है। हमारा एक सबसे पहला प्रोग्राम एक सक्षम जो एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना, उनको ओरिएंटेशन देना, उनको ट्रेनिंग देना। मुझे मालूम है जो आज इधर कितने लोग हैं, उसमें काफी लोगों को जो सक्षम प्रोग्राम में जोड़ना और उनसे वो प्रोग्राम से फायदा मिला होगा। संकल्प प्रोग्राम है, उनको सपोर्ट करना, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब तैयार करना, उनको मेंटरशिप देना और उनका मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग में सपोर्ट करना, ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। स्फूर्ति प्रोग्राम है, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एट लोकल एज वेल एज द ग्लोबल लेवल। इसके लिए हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको लोकल और नेशनल लेवल लेके जाने के लिए हम एफर्ट्स कर रहा है। बहुत सारे लोगों को छोटा बिजनेस करने के बाद एटलीस्ट एक स्मॉल सीड कैपिटल का गैरेज है, ऐसा लोगों को 5,000 से 10,000 से 15,000 तक देके एक सेकंड लेवल पर उनका जो बिजनेस को लेके जाने के लिए वो भी हम सपोर्ट कर रहा है। हमारा एक गोल है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करना, उसमें हमारा पूरा जो 6,000 एंटरप्रेन्योर है, एटलीस्ट 600 लोगों का जो प्रोडक्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री करने के लिए एक माहौल तैयार करना, एक प्रोसेस शुरू करना, वो भी है। और आप सबको मालूम है, आप लोग ये प्रोग्राम में हैं जो यस समिट, उसको प्रमोट करना एंड जो लोग छोटे बिजनेस कर रहा है उनको इंक्यूबेशन और एक्सेलरेटर तक लेके जाना और उनका बिजनेस ग्रोथ के लिए सपोर्ट करना, उसका हमारा एक 4वां प्रोग्राम है। इसके साथ भी आप सबको एक मौका मिलेगा अलग अलग कोर्सेज और ट्रेनिंग अटेंड करना और आपका जो विचार है, आपका जो सपने है, दूसरों को शेयर करने के लिए हमने एंटरप्रेन्योरशिप टॉक भी शुरू किया है। सो व्हाई वी सपोर्ट माइक्रो बिजनेस, इसका कारण है जो 30% जो पुअर है उनको डिसेंट जॉब मिलना, जो डॉक्टर सफदर जी ने बातचीत किया, जो डिसेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। और डिसेंट जॉब मिलने के अलावा हमको उनको एक बिजनेस शुरू करना और सपोर्ट किया, तो आई मीन जॉब ढूंढने के लिए और जॉब सर्च करने का गर्ज नहीं है, वो लोग दूसरों को जॉब दे सकता है। उसके साथ भी हम सब छोटे छोटे बिजनेस कर रहा है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी तैयार करे वो हम हमारा लाइक माइंडेड लोगों को मिलने के लिए, उनको सपने देखने के लिए और शेयर करने के लिए, बाकी जो इस प्रकार का एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी में जोड़ना और उनको सपोर्ट करना हमारा एक दूसरा रीजन है।
एंड आप सबको मालूम है, मैं बहुत सारे लोगों को मिल रहा, मैं आज जो रायपुर में हूँ, रायपुर में भी कुछ लोगों को मिला, लेकिन उनका डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंस मैनेजमेंट इज वेरी पुअर है। आप हम सबको मालूम है, जब तक हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट, हमारा लीगल डॉक्यूमेंट पक्का नहीं है, तो हम आगे बिजनेस बढ़ाना और बिजनेस एक सेकंड थर्ड लेवल में लेके जाना बहुत मुश्किल है। उनको सपोर्ट चाहिए। एंड ऑल्सो इसके साथ हमको लगता है आर्टमस यूनिवर्सिटी और इंक्यूबेटर्स और यूथ एड फाउंडेशन ऐसा संस्थान के साथ जुड़कर हमारा जो अलग अलग ट्रेनिंग अटेंड करना, उसमें जो बिजनेस फेलियर कम करना, वो भी हमारा एक बड़ा उद्देश्य है। सो हम जनरली ये थीमेटिक एरिया एड्रेस करता है माइक्रो बिजनेस, IT एंड इनोवेशन, एग्री बेस्ड आइडियाज, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, सोशल इम्पैक्ट आइडियाज और अदर माइक्रो बिजनेसेस। ये 5 सेक्टर में जनरली हम एंटरप्रेन्योर को मिलता है और उनके साथ सपोर्ट करने के लिए हम अलग अलग एफर्ट्स ले रहा है। Now I am coming to today's talk that हमको हमारा बिजनेस को बढ़ाना है। हमको हमारा एक माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और बिजनेस माइंडसेट हमको तैयार करना पड़ेगा। मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों को ये माइंडसेट नहीं दिख रहा है, कैसे हमारा छोटे बिजनेस से एक मोटा बिजनेस तैयार करें और उसका फायदा हमारे लिए भी नहीं, हमारा फैमिली के लिए भी नहीं, हमारा देश और हमारा बाहर देश के लोगों को उसका फायदा कैसे मिले। मुझे लगता है उसके बारे में हमको सोचने का गर्ज है। आगे का 1 आवर मैं इसके बारे में बात करूंगा और उसके बाद आपको कुछ प्रश्न है तो प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ डॉक्टर सप्तर्षि है, मौसमी है, पूजा है, वो भी आपका प्रश्न का उत्तर दे देंगे। मैं सबको बोलना चाहता हूं, हमको हमारा बिजनेस बढ़ाना है, पहले हमारा अभी का स्टेटस क्या है उसके बारे में एक असेसमेंट करना ही पड़ेगा। वेयर आर वी टुडे, वेयर आर वी नाउ। मुझे लगता है आज 75 to 80 लोग ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा है। उनका खुद को पूछना पड़ेगा, मेरा बिजनेस में मैं किधर हूं। बिजनेस शुरू करने के पहले मैं क्या स्वप्न देखता था और वो स्वप्न में किधर तक पहुंचा है। 10% अचीव हुआ है क्या, 20% अचीव हुआ है क्या, और 30% तक पहुंचा है क्या। आपने शायद एक स्वप्न देखा होगा 2022 और 2023 में मुझे 10 लाख और 1 मिलियन रुपीस का बिजनेस करना है। मैं उधर तक पहुंचा है क्या? मैं पहुंचा नहीं है तो उसका कारण है, मुझे लगता है आज हम जब ये सेशन कर रहा है उसके बारे में आपके पास नोटबुक और पेन है तो लिखिए, मैंने कौन सा स्वप्न देख के मेरा बिजनेस शुरू किया, मैं किधर हूं। उसके साथ मुझे लगता है एक बार हमने हमारा असेसमेंट किया, हम 0 से 10 पॉइंट तक पहुंचा है और 0 से 20 पॉइंट तक पहुंचा है, हमको ये बेसलाइन मिल गया। ओके, आज मेरा बिजनेस का टर्नओवर महीने में 10,000 है, आज मेरा बिजनेस का महीने का टर्नओवर 1 लाख है, आज मेरा बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख है। एक बेसलाइन तैयार करने के बाद हमको हमारा एक टारगेट सेट करना पड़ेगा
हमको किधर पहुंचना है। ओके, मार्च 2023, आज मेरा बिजनेस का टर्नओवर मंथली 10,000 रुपीज है। दैट मीन्स एनुअली 1,20,000। हम आज हमारा टारगेट सेट कर दीजिए, मार्च 2022 को मेरा 10,000 रुपीज को मुझे 30,000 महीने में कन्वर्ट करना है, और 30,000 से मुझे 50,000 रुपीस में मेरा टारगेट मुझे कंप्लीट करना है। मुझे लगता है सब लोग आज आपका टारगेट तैयार करना पड़ेगा। और ये टारगेट तैयार करने के टाइम हमारा पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। पास्ट किस प्रकार मेरा बिजनेस को देखा है, क्या मेरा बिजनेस को एक साइड बिजनेस करके देखा है क्या, और मेरा बिजनेस को एक एडिशनल इनकम करके देखा है क्या, और मेरा इस बिजनेस को एक ब्रांड बिल्ड करना है, मेरा बिजनेस का नाम 50,000 लोगों को पहुंचना है, मेरा बिजनेस का फायदा 1,00,000 लोगों को मिलना है, क्या उसके बारे में हम कभी भी सोचा है क्या? इसलिए मुझे लगता है आज शायद इस सेशन खत्म करने के बाद एक नोटबुक में हमारा बेसलाइन और हमारा टारगेट तैयार करना। नोट बेसलाइन का मतलब है आज हमारा कमाई कितना है, वो कमाई कैसे है। टारगेट का मतलब क्या है, हमको कितना कमाना है। हम मार्च 2023 को हमारा कमाई क्या होना चाहिए, आप सब लोग आज ही तैयार कर दीजिए। ये तैयार करने के टाइम हमको एक बड़ा स्वप्न देखना है, हमको एक मिलियनर बनाना है, हमको एक करोड़पति बनना है। ऐसा नहीं है करोड़पति जो जनरल नॉलेज और जो अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठ के नहीं, लेकिन हमारा मेहनत से, हमारे बिजनेस से हमको एक साल में 1 करोड़ का बिजनेस करना है। ऐसा एक बड़ा स्वप्न और बड़ा विजन और ध्येय हमको तैयार करना पड़ेगा। 2000 मार्च 23 को नहीं, शायद 2000 मार्च 25 को हमको किधर पहुंचना है, हमको क्या करना है, उसके ऊपर हमको एक थोड़ा रिफ्लेक्शन और एक हमारा एक बड़ा स्वप्न तैयार करना है। इसलिए लेट अस क्रिएट ए विजन एंड ए मिशन फॉर दैट। सो आज का सेशन के बाद आप लिखिए 2025 में मेरा बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ होना चाहिए, और 50 लाख होना चाहिए, और 25 लाख होना चाहिए साल में। मुझे लगता है इस प्रकार का एक बड़ा ध्येय हमको प्लान करना पड़ेगा, हमको तैयार करना पड़ता है। इसके साथ भी हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट और हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में बात करें। अभी परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है? 2025 मार्च को हमारा बिजनेस 50 लाख तक साल में लेके जाना, और 1 करोड़ तक लेके जाना, और इवन इट कैन बी 10 करोड़। आई नो देयर आर पोटेंशियल पीपल लाइक विक्की, उनका बिजनेस शायद 100 करोड़ तक लेके जाने का मौका और अपॉर्चुनिटीज है। सो आपको आपका विजन और टारगेट सेट करना, और ये टारगेट के साथ भी आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट तैयार करना। परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है? हर महीने में मेरा परफॉर्मेंस कैसे हो, एक एक स्टेप
हमको मालूम है 2025 को हमारा बिजनेस को 50 लाख तक लेके जाना, और आज हमारा बिजनेस 1 लाख है साल में। हर महीने में शायद हमको 1 और लाख उसका मेजरमेंट क्या होगा, कितना बढ़ाना है, एक एक साल में शायद हमको 5 लाख तक लेके जाना है। सो आपको आपका मेजरमेंट इंडिकेटर्स तैयार करना, मेरे स्टेप बाय स्टेप में मेरा बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मेरा बिजनेस कैसे मैं लेके जाऊंगा। एक बार हमने हमारा रिफ्लेक्शन करने के बाद मुझे लगता है हमको और थोड़ा देखना है, क्या मेरा बिजनेस में क्या इनोवेशन हो सकता है, मेरा बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है। इनोवेशन का मतलब ऐसा नहीं है नया चीज करना। शायद किसी ने कुछ लड्डू और पपड़ और कुछ अचार और कुछ टेलरिंग और एनीथिंग, इसमें कैसे हम इंप्रूव करें उसके बारे में हमको सोचना है। हम हमारा जो प्रोडक्ट है और हमारा जो सर्विसेज है, वो सर्विसेज और प्रोडक्ट उसको कैसे हम इंप्रूव कर सकता है, कैसे वैल्यू एडिशन कर सकता है, उसके बारे में हम रोज रोज सोच रहा है, तो हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप कर रहा है। ओके, एक बार बनाया, देन हमने भूल गया। ओके, 5 साल के पहले भी मैं वही लड्डू बनाता है और यही अचार है, लेकिन 5 साल के बाद वही हम प्रोसेस में है। इन दैट केस हमारे में एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं है। हम जस्ट एक धंधा कर रहा है, एक बिजनेस कर। सो आज सोचिए, मैं मेरा बिजनेस के बारे में और मेरा सर्विस के बारे में और मेरा दुकान के बारे में इंप्रूव करने के लिए और कुछ बदलाव लाने के लिए और कुछ अलग करने के लिए सोच रहा है क्या? सोच रहा है तो हमने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है। मैं बोलना चाहता हूं, रिसेंटली मैंने पवन और सूरज को सिन्नर में मिला। 2-3 साल पहले उन्होंने छोटे बिजनेस शुरू किया था, लेकिन दोनों में बोला हम अभी एक नया ब्रांच शुरू करेंगे। एक नया ब्रांच शुरू करके एक और नया यूथ को, युवाओं को मैं जॉब दे देंगे। मुझे लगता है दे आर बिकमिंग इनोवेटिव और इम्प्रूविंग। दे अलग सोच रहा है, वो उनका बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोच रहा है। मैंने एक लेडी को मिला सतारा में, वे हम हमेशा आम का अचार और नींबू का अचार बनाना, लेकिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके एक हल्दी का अचार बनाया। मैं काफी लोगों को मिला है नंदुरबार में, वो भी कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रहा है। जो हमारे मन में एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, तो हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को इंप्रूव करने के लिए हमेशा सोचें। सो आपको सोचना पड़ेगा, मेरा प्रोडक्ट अभी भी वही है क्या, और मुझे और कुछ इंप्रूव करना है क्या? ये इंप्रूव करना के बाद अभी नेक्स्ट मैं बोलना चाहता हूं, आपको आपका टारगेट कौन है वो देखना पड़ता है। हमारा प्रोडक्ट हमेशा एक प्रकार का सब प्रकार का लोगों के लिए नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हमेशा ये उदाहरण मैं देता हूं।
सी बड़े बड़े लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उनका एनुअल सैलरी इस 50 लाख और 1 करोड़ तक है। उनको मारुति कार में इंटरेस्ट नहीं, उनको BMW चाहिए, उनको मर्सिडीज चाहिए। सो हमको तैयार करना पड़ेगा हमारा टारगेट कौन है, हम किसको टारगेट करें, किस प्रकार का लोगों हमारा कस्टमर होना चाहिए, वो हमको एक बार आइडेंटिफाई किया तो उसके अनुसार हमारा प्रोडक्ट और हमारा सर्विस में भी बदलाव करने का गरज है। शायद पैकिंग में हो सकता है, शायद क्वालिटी में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फूड आइटम बनाना है तो जो एक अलग प्रकार का लोग है जो हेल्थ कॉन्शियस है, एक अलग प्रकार का लोग है वो न्यूट्रिशन कॉन्शियस है, कुछ अलग प्रकार का लोग है उनको चीप फूड चाहिए। आज मैं रायपुर में एक एंटरप्रेन्योर को मिला, टिंगू डब्बा सर्विसेज। कल उनका डब्बा खाने के टाइम में उनको पूछा आपका टारगेट कौन है। उनका टारगेट है हॉस्टल से स्टूडेंट्स और जो लेबर क्लास लोग है। मैं पूछने का कारण है, वो उनका डब्बा का कॉस्ट है पर डब्बा 40 रुपीज। उनको मालूम है स्टूडेंट्स को और लेबर क्लास को वही अफोर्ड कर सकता है। सो उनका टारगेट है 50 डब्बा डेली जा रहा है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। सो उन्होंने टारगेट किया। हमको भी हमारा टारगेट तैयार करना, कॉन्स्टेंटली उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। उस प्रकार का हम सोच रहे हैं तो हम एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट तैयार कर रहे हैं। अभी हमारा टारगेट आइडेंटिफाई करने के बाद उनके लिए राइट प्रोडक्ट और सर्विसेज, किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए। मुझे मालूम है हमारे साथ संतोष भाई है बैंगलोर से। संतोष भाई का जो प्रोडक्ट है एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, स्पेशल कैटेगरी लोगों के लिए। हमको देन हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी और हमारा प्रोडक्ट का पैकेजिंग ऐसा करना चाहिए, एंड उसके साथ हम हमेशा एक रिफ्लेक्ट करना चाहिए हमारा प्राइसिंग कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, जो टिंकू ढाबा सर्विस वाला है, उन्होंने 40 रुपीज पर डब्बा चार्ज किया। उनका जो कस्टमर उस प्रकार का कस्टमर है, शायद थोड़ा और क्वालिटी ऐड करके शायद 80 रुपीज और 100 रुपीज में वो डब्बा जा सकता है। उसका टारगेट अलग लोग हो सकता है। सो हमको कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचना पड़ता। देयरफॉर ए अच्छा एंटरप्रेन्योर और ए गुड एंटरप्रेन्योर हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहता है। आपको सोचना पड़ेगा क्या आप एक्सपेरिमेंट करता है क्या आपका प्रोडक्ट के बारे में, आपका सर्विस के बारे में, और आपका टारगेट के बारे में, और आप एक्सपेरिमेंट कॉन्शियसली करना पड़ता है। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हमारा प्रोडक्ट और सर्विस भी में भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। सो हम आज रिफ्लेक्ट कर दीजिए मेरा बिजनेस किधर है, मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट ला रहा हूं, मेरा टारगेट कौन है, मेरा प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट है क्या, राइट कस्टमर है क्या, राइट प्राइसिंग है क्या। मुझे लगता है इसके बारे में कॉन्शियसली हमको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ भी हमको कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन करने का गरज है। मैं काफी लोगों को मिला है, बहुत सारे महिलाओं को मिला है, एंड बहुत सारे लोगों में एक बड़ा फियर है, डर है, मेरा बिजनेस कैसे होगा, मैं पैसा कमाया है क्या। मुझे लगता है जो
एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का मतलब है हमारे पास जो फियर नहीं है, हम किसको डरता नहीं। एंटरप्रेन्योर लोग हैं, वो हमेशा डिसीजन लेने के लिए आगे हैं, वो हमेशा फेलियर से, मिस्टेक से, गलती से सीखना चाहता है, गलती करने के लिए डरता नहीं है, लेकिन गलती रिपीट न करने की कोशिश करना चाहिए। सो हम खुद को सोचने का गरज है, क्या हम गलती करते हैं क्या, हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या, मिस्टेक कर रहे तो क्या हम लर्न सीख रहे हैं क्या, हम सीख रहे तो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं क्या, और हम सेम मिस्टेक और कर रहे हैं क्या। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक बड़ा मिस्टेक सभी एंटरप्रेन्योर कर रहा है, उनका जो डेली इनकम एक्सपेंडिचर लिखते रखता नहीं, कितना आमदनी है, कितना खर्चा है, डेली मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, डेली रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। इसका कारण से हमारा मिस्टेक और हमारा फेलियर को नहीं समझाता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। एक बड़ा कारण है फियर, डर। डर जब हमारा एक्सपेंडिचर और इनकम रोज लिख रहे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है, उद्यमिता के बारे में एक एटीट्यूड है, एंड जब हम हमारा अकाउंट्स, हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर डेली मेंटेन किया, तो हमको मालूम पड़ेगा हमारा गलती किधर है, हम किधर किधर मिस्टेक कर रहा है, एंड दैट ऑल्सो कैन रिड्यूस हमारा फियर, हम डर से बाहर आ सकता है। और इसके साथ भी हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कस्टमर के साथ हमारा कम्युनिकेशन, हमारा क्लाइंट के साथ हमारा कम्युनिकेशन, अलग अलग लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन। मुझे लगता है जो कम्युनिकेशन हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सर्विस के बारे में बोलना और कम्युनिकेट करना हमको सीखने का बहुत कर्ज है। जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तब तक हमारे बिजनेस के बारे में किसी को मालूम नहीं है। हम सिलाई अच्छे करते हैं, हम लड्डू और अचार और पपड़ अच्छा बना के रहते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है आपके पास और आपके इधर इतना अच्छा प्रोडक्ट और साधन है। इसलिए जो एंटरप्रेन्योरियल लोग हैं, जो बिजनेस आगे बढ़ाना है, वो लोग उनका खुद का प्रोडक्ट और खुद का बिजनेस के बारे में दूसरे के साथ शेयर करना, बोलने के लिए डरते नहीं। कितने लोगों को मालूम है, उतने लोगों को आप कस्टमर में कन्वर्ट कर रहे। सो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन कर दीजिए, क्या रोज हम लोगों के साथ मेरे बिजनेस के बारे में बात करते हैं क्या, लोगों के साथ इंफॉर्मेशन पहुंचते हैं क्या। मुझे लगता है इसके बारे में हमको सोचने का गरज है। एंड देन द नेक्स्ट इज यूज अपॉर्चुनिटीज, मौकाओं को यूज करना। मैं कोविड के टाइम दो प्रकार के लोगों को मिला है। एक प्रकार का लोग मेरे साथ बात किया, सर कोविड की वजह से मेरा बिजनेस बंद हो गया। दूसरे प्रकार के लोग कोविड को एक अपॉर्चुनिटी करके देखा, एक मौका करके देखा, एक नया बिजनेस शुरू करके पैसा कमाए। आज मैं एक दोस्त के साथ, हेमंत भाई के साथ बात किया, रिदेश भाई भी है या अटेंड कर रहा है। उन्होंने बोला कोविड के टाइम हम सब इकट्ठा आके डब्बा शुरू किया
और सबको डब्बा पहुंचाने के लिए कोशिश किया, उसमें से हमारा कमाई बहुत हो गया। हम सोचना चाहिए हमारे साथ बहुत सारे मौका है, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को हम यूज नहीं कर रहा है। देन हम एक कारण, वो इस प्रकार का हटना होने के बाद एक कारण आएंगे, मेरा बिजनेस बंद हो गया। परवीन हमारे साथ है। परवीन में मुझे बोला है, एक औरत भोपाल में, उनका एक दुकान था, वो दुकान बंद करना पड़ा, लेकिन रात को जो दुकान खोल के 1-1 किलो का पैकेट का शक्कर और अलग अलग पैकेट बना के घर घर में जाके भेजा। सो बहुत सारे लोग पैसा कमाया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कारण है मेरा बिजनेस बंद हो गया। इसका मतलब है जो लोगों ने मौका देखा, मौका यूज किया, उनमें जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, उनको बिजनेस आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी को देखता है, मौका को देखता है, मौका को बिजनेस को कन्वर्ट करता है। हमको देखना पड़ेगा हमारे सामने ऐसा अपॉर्चुनिटीज है क्या, अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करें। एंड इसके साथ भी जो कुछ करता है उसमें हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए, हमें उसमें स्ट्रांगली बिलीव करना चाहिए। मैं काफी वो बिलीव नहीं देख रहा है, जो कॉन्फिडेंट, जो आत्मविश्वास हमारा प्रोडक्ट के बारे में और हमारा बिजनेस के बारे में, वो आत्मविश्वास काफी लोगों को नहीं। ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट सक्सेसफुल करेंगे, मुझे लगता है वो आत्मविश्वास का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं बोलना चाहता हूं, कौन सा भी सिचुएशन में हमारे बिजनेस के बारे में हमको आत्मविश्वास है तो आज नहीं कल हमारा बिजनेस का ग्रोथ 10 गुना आगे बढ़ेंगे, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। सो मुझे लगता है आप एक बार एक छोटा रिफ्लेक्ट कर दीजिए, मैं मेरा प्रोडक्ट के बारे में इंप्रूव करने के लिए सोचता है क्या, मेरा राइट टारगेट को ढूंढता है क्या, मेरा राइट कस्टमर को के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्या, मेरा प्रोडक्ट राइट है क्या, मेरा प्राइसिंग ठीक है क्या, डू आई एक्सपेरिमेंट, मैं नया चीज बनाने के लिए और कोशिश करता है क्या, मैं मेरा फेलियर के सीखता है क्या, डू आई मैं मेरा दूसरे लोगों के साथ मेरा बिजनेस के बारे में संवाद करता है क्या, कम्युनिकेट करता है क्या, मैं अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहे क्या, डू आई हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन माय बिजनेस। मुझे लगता है ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक आप में है तो आपके पास एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है। आपका जो छोटा बिजनेस एक बड़ा बिजनेस तक लेके जाने के लिए आपके पास ताकत है। ये पूरा एक रिफ्लेक्ट करने के बाद मुझे लगता है हमारा बिजनेस ग्रोथ के बारे में हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमारा बिजनेस ग्रोथ के बारे में सोचना है तो एक 6 इंडिकेटर है, उसके बारे में हमको देखने का गरज है। हमको देखना पड़ेगा क्या हम हमारा कस्टमर, हमारा ग्राहक, उसके बारे में स्टडी करते हैं, वो कौन है, हमारा कस्टमर कौन है, हमारा ग्राहक कौन है, उनके बारे में सोचता है क्या, उनका क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनका क्या नीड्स है। मुझे लगता है उसके बारे में सोचने का गरज है। जब तक हम हमारा कस्टमर के बारे में सोचेगा नहीं, हमारा बिजनेस का ग्रोथ नहीं होगा।
सो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लोग हैं, हमेशा कस्टमर को देखता है, खुद को, ईगो को नहीं, खुद को नहीं देखता है, कस्टमर को देखता है, उनको क्या चाहिए। मुझे लगता है आपको आज शायद आपके पास 10 कस्टमर हो सकता है, 20 कस्टमर हो सकता है, 50 कस्टमर हो सकता है, 100 कस्टमर हो सकता है। उनके बारे में सोचिए, वो आपका प्रोडक्ट के बारे में और आपका सर्विस के बारे में क्या सोच रहे हैं। बिकॉज जब हमारे पास ज्यादा कस्टमर है, ज्यादा पैसा है। आप देखिए, जियो के पास मिलियंस ऑफ कस्टमर्स है। जब मिलियंस ऑफ कस्टमर है तो मिलियंस ऑफ रुपये मिलेगा। एवरीथिंग कस्टमर बेस। एंड दूसरा, डू वी शेयर हमारा स्टोरीज विद द कस्टमर। अभी क्या है, शिवाजी ने एक बार मुझे बोला, जो नंदुरबार के दरगाह में एक दीदी ने बहुत अच्छा लड्डू बनाया। क्या लड्डू बनाने के दूसरों को देने के बाद उनका स्टोरीज, क्या छोटा स्टोरीज और छोटा वीडियो तैयार करके हम दूसरे लोगों को दे सकते हैं क्या? हमारा प्रोडक्ट का इम्पैक्ट है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, इस प्रकार का जानकारी और दूसरे लोगों से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमारे हमारे घर के नजदीक एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट है, उनको बोल सकते हैं क्या, आपका जो प्रोडक्ट है, आपके बारे में एक छोटा स्टोरी न्यूज़पेपर में लिखिए, एक छोटा पोस्टर बनाइए, एक छोटा वीडियो बनाइए, वो वीडियो बना के दूसरों को शेयर कर सकते हैं क्या? उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। जब तक हम ऐसा करेगा नहीं, हमारा बिजनेस का ग्रोथ नहीं होगा। सो हमारा कस्टमर का जो फीडबैक है, हमारा जो कस्टमर का जो फीलिंग्स है आपका प्रोडक्ट के बारे में और आपका सर्विस के बारे में, वो दूसरे लोगों को भी मालूम करना चाहिए जब दूसरे लोग आपके पास आ गए। सो छोटे छोटा इम्पैक्ट स्टोरीज तैयार करना। काफी लोगों के साथ मेंटर्स है, काफी लोगों के साथ युवा मित्र है, जो महाराष्ट्र के काफी जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनके साथ, कुछ लोगों के साथ युवा मित्र, जो उद्योग मित्र जाता है, उनको सपोर्ट कर, उनको बोल दीजिए, आपका एक स्टोरी, एक छोटा वीडियो बनाइए, वीडियो बना के लोगों को शेयर कर दीजिए, आपका प्रोडक्ट के बारे में, आपका सर्विस के बारे में, कस्टमर का स्टोरीज, कस्टमर का फीलिंग्स। इसके साथ मैं बोलना चाहता हूं, हमारा कस्टमर को एक एश्योरेंस देना चाहता है, देने का गर्ज है। कस्टमर का एश्योरेंस क्या है? हम सब दुकान में जाता है, कुछ जाने के टाइम जो दुकानदार है हमको बहुत सारे, ये कपड़े का दुकान है तो बोलते हैं भैया ये कॉटन का शर्ट है, बहुत अच्छा है, ये स्पेशल आया है। कैसे वो लोग हमको कन्विंस करता है। मुझे लगता है जो कन्विंस करने का एटीट्यूड को भी हमको डेवलप करना चाहिए। जब तक कन्विंस करने का एटीट्यूड नहीं है, हमको बिजनेस का ग्रोथ के बारे में सोचना मुश्किल है। सो वी नीड टू अश्योर आवर कस्टमर। अभी एक कस्टमर, चाय का दुकान है, एक कस्टमर आके बोला भैया आपका चाय में ज्यादा शक्कर है। सॉरी सर, सॉरी मैडम, मैं नया बना के दे दूंगा और अगले बार मैं आपको सही पिलाएंगे। सो दिस अश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। वो अश्योरेंस हमको कस्टमर को टिका के रखने के लिए, एंड हमारा कम्युनिकेशन ऐसा अच्छा होना चाहिए,
हमको कस्टमर को पुश करना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सर्विस के बारे में हमारा कस्टमर डिसीजन लेना चाहिए। उनको बोलिए चाहिए अब देखिए इसका टेस्ट। मैंने कल एक नमकीन का दुकान देखा रायपुर में, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नमकीन का लोग ओनली नमकीन, मुझे लगता है 25 प्रकार का नमकीन है। अब देखिए उनका स्ट्रैटेजी क्या है मालूम है क्या? जो जो नमकीन का जो पैकेट के पहले एक छोटा टेबल है, वो टेबल के ऊपर एक छोटा छोटा पैकेट में उन्होंने नमकीन, मैं बोलना चाहता हूं 5 ग्राम और 10 ग्राम हो सकता है, छोटा पैकेट में फ्री टेस्ट अवर नमकीन फ्री पैकेट। अब देखिए वो नमकीन जो फ्री पैकेट टेस्ट करने के बाद सब जाके बड़ा पैकेट खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा टेक्निक है, ज्यादा नहीं है। अब देखिए छोटे पैकेट में एक फ्री पैकेट, वो बोल उधर लिखा है फ्री पैकेट फॉर टेस्टिंग। क्या स्ट्रैटेजी है? लोग जाता है, उनको जो पसंद का पैकेट लगता है टेस्ट करता है और दूसरा पैकेट खरीद के लेके जाता है। व्हाट अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी। अरे दोनों छोटे बच्चे हैं, मुझे लगता है ज्यादा 18 और 19 साल का, एक मुझे लगता है ब्रदर और सिस्टर दोनों एक दुकान चला रहे, वेरी इनोवेटिव। मैं उनको पूछा कब से शुरू किया, बोला एक हफ्ते पहले हमने शुरू किया है। कैसे चल रहा है? बोला अच्छा चल। सी हाउ टू मेक कस्टमर डिसीजन मेकर। सो हमारा कस्टमर को हम डिसीजन, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सर्विस के बारे में डिसीजन लेने के लिए हमको मौका देना चाहिए। इन दैट केस हमारे साथ एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। आप देखिए ये पूरा करने के बाद हम भी सोच सकता है ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन और प्रोडक्ट एक्सपेंशन। सो आपको देखना पड़ेगा, जस्ट लाइक जो सूरज और पवन मेरे साथ बात किया, उन्होंने बोला उनका प्रोडक्ट एक्सपेंशन नहीं था, उन्होंने जियोग्राफिकल एक्सपेंशन किया। एक गांव से दूसरे गांव में जाके दूसरा दुकान डाला, दैट इज जियोग्राफिकल एक्सपेंशन। लेकिन सेम दुकान में मैं एक अलग प्रोडक्ट शुरू किया। मेरा चाय का दुकान है लेकिन मैं उधर कॉफी भी सर्विस किया, तो मैं एक प्रोडक्ट का एक्सपेंशन कर रहा हूं। मेरा नमकीन का दुकान है, नमकीन का दुकान में मैं एक लड्डू का भी प्रोडक्ट बना के बिक्री किया, तो मैं एक प्रोडक्ट एक्सपेंशन कर रहा हूं। मुझे मालूम है महेश है हमारा पुणे का, उन्होंने लड्डू का शुरू करने के बाद बिस्किट का भी शुरू किया है, शायद बिस्किट का भी हुई हो। जो महेश ने पहले शुरू किया लड्डू, बाद में लड्डू एक मार्केट में सक्सेस होने के बाद उन्होंने एक बिस्किट का भी प्रोडक्ट एक्सपेंशन किया। सो ये उन्होंने सही किया। अब देखिए लड्डू और बिस्किट, उन्होंने लड्डू के साथ कपड़े का एक्सपेंशन किया नहीं, उन्होंने लड्डू के साथ मसाला का एक्सपेंशन किया नहीं, उन्हें लड्डू के साथ बिस्किट का एक्सपेंशन किया। अब देखिए सो ये पूरा हमको देखना पड़ेगा, ये हमको कंटिन्यूसली इसके बारे में रिफ्लेक्शन। सो हमको एक ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन चाहिए क्या, हमारे एक प्रोडक्ट एक्सपेंशन चाहिए। लेकिन ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के पहले हमको सेकंड लेवल लीडरशिप तैयार करना पड़ता है। हमारे पास दूसरे लोग चाहिए। क्या मैं एक दूसरा ब्रांच शुरू करेंगे, उस समय मेरे पास
मेरा प्रेजेंट ब्रांच में चलाने के लिए लोग है क्या। मुझे मालूम है बापू इधर होगा जो मनपसंद का चाय, उन्होंने मुझे एक बार बोला है, उन्होंने बहुत सारे फ्रैंचाइज किया है, अलग अलग फ्रैंचाइज करके उनका बेस्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के लिए कोशिश कर रहा है। हम इस सब लोगों को हम शायद आटमस यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, उनका प्रेजेंटेशन देखेंगे और उनके साथ चर्चा करने के लिए हमको बहुत मौका मिलेगा। सो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, डू वी स्टडी आवर कस्टमर्स, हम हमारा कस्टमर का जो इम्पैक्ट स्टोरीज हम दूसरों को शेयर करता है क्या हमारा कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट और के बारे में हम अश्योर कर सकते हैं, करता है क्या हम हमारा कस्टमर को डिसीजन मेकर बनाता है क्या। इसके सब करने के बाद क्या हमारा बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या हमको प्रोडक्ट एक्सपेंशन चाहिए और ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन चाहिए, उसके बारे में सोचें। अब देखिए ये पूरा क्वालिटीज आप में है तो आप में एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, एक एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग है। ऐसा नहीं है हम ये पूरा जो बिजनेस कर रहा है थोड़ा पैसा कमाने के लिए और घर चलाने के लिए नहीं, हम हमका बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। वो बिजनेस बढ़ाना है तो हमारा कस्टमर को टिका कर रहने का गर्ज है। हमारे कस्टमर को टिका के रहना है तो हमको इनोवेशन करने का, इम्प्रूवमेंट करने का, हमारा राइट टारगेट देखने का, हमारा राइट प्रोडक्ट है क्या देखने का, राइट प्राइसिंग। वेरी ऑफन वी सी ये द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट और प्राइसिंग मैच नहीं हुआ, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलना चाहता हूं शुरू में हम प्रॉफिट कम करने की कोशिश करना, धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करना। मुझे लगता है ये पूरा एक रिफ्लेक्शन आज आप कर दीजिए। आप मैं शुरू में आपको बोला है आज का आपका बेसलाइन क्या है, आप किधर है आपका बिजनेस में। कुछ लोग बोल सकता है प्रॉफिट में है, कुछ लोग बोल सकता है वो लॉस में। डोंट वरी, प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस में है, लेकिन हमको एक टारगेट तैयार करना है और टारगेट को अचीव करने के लिए हमको मेहनत करना है। हमारा टारगेट मार्च में क्या होना चाहिए, मार्च 2024 में क्या होना चाहिए, मार्च 2025 में क्या होना है, वो भी हमको तैयार करना है। उसके बारे में हमको आगे बढ़ना है। मैं कुछ पिक्चर दिखाऊंगा हमारा प्रीवियस 2026-27 में। जो देखिए बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग जो एस समिट में आए और सीखने के लिए कोशिश किया। ये 2019 का है, दैट वाज द लास्ट फिजिकल एस समिट हम ऑर्गेनाइज किया। 20th को नहीं हुआ, लेकिन 21st को हमने ऑनलाइन किया, लेकिन 22 को हमने ऐसा तैयार किया है कि हम एक फिजिकल सबमिट करेंगे और हम आपके साथ एक जर्नी शुरू करने की कोशिश कर रहा है। आपका बिजनेस ग्रोथ और आपका बिजनेस को लेके आप में एक माइंडसेट तैयार करना और आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए हम आपके साथ हैं। आटमस यूनिवर्सिटी के लोग आपके साथ हैं, बहुत सारे मेंटर्स आपके साथ हैं, उद्योग मित्र आपके साथ हैं और यूथेड फाउंडेशन के लोग और बाकी लोग भी आपके साथ हैं। मुझे आपको जो फर्स्ट मास्टर क्लास में मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। Over to the participant for questions, if any. Over to you, Josna. Yes. Thank you, Matthew, for taking us through this journey of entrepreneurship from identification, targeting the customer, setting up the target, and also telling about how
we should have entrepreneurial spirit and think continuously about the innovations. So I'll request if any have any questions, you can raise hand or ask it. Unmute yourself and you can ask the questions. विनोद पाटिल रेस किया है। विनोद पाटिल, यू आपका क्वेश्चन है क्या, पूछ सकता है? बापू नरूटे, आपने हैंड रेस किया है, आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आपका कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो भी आप मैंने जो बातचीत किया उसके बारे में आपका प्रतिक्रिया क्या है? आप उसमें और कुछ ऐड करना चाहता है? बिकॉज आप सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, सो उसमें आपसे भी हम सीखेंगे। ये एक शेयरिंग सेशन है, ऐसा नहीं है उसमें आई मीन एक्सपर्ट आएंगे और बातचीत करेंगे, बिकॉज आपका अनुभव भी बहुत है। पेपर एंड शेपर आप बात करना चाहते हैं? चिदम्बर, या ओके। बापू बोल रहे हैं अनम्यूट नहीं हो रहा है, बापू को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? हमने गिव द राइट टू या। हाँ सर, आपने जो अभी जो पीपीटी में जो सब कुछ जो बताया है, मतलब मैं 2015 से बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आपने बहुत सारे मुद्दे जो पॉइंट्स बताए वो सच में है सर। मतलब जो मेरे को प्रॉब्लम में आया था, मतलब जो आपने जो पॉइंट्स क्लियर किए हैं वो बहुत ही अच्छे है सर। प्रॉब्लम खाली वो पीपीटी शेयर कर सकते हैं क्या सर हमें? जरूर आपके सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जो आपने बताया वो सर 100% सही है सर। इट्स राइट फॉर मी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बापू। चिदम्बर, थैंक यू सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत अच्छा सेशन हुआ, बहुत दिन के बाद ब्रेन को कुछ अच्छा सुनने को मिला। मेरा एक ऐसा सवाल था, अभी आपने बोला कि कोविड में कि बहुत सारे लोगों ने अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की और कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटी उनको नहीं, वो बोले कि मेरा बिजनेस ये हो गया। लेकिन मेरा सवाल है कि अगर कोई बिजनेस 10 साल से, 4 साल से, 5 साल से पूरी उसमें कॉन्सेंट्रेट करके कर रहा है, लेकिन कोविड की वजह से उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो कैसे, वो बिजनेस तो बदल नहीं सकता ना वो। जैसे कि मेरे हिसाब में ऐसा क्या हुआ कि मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ इसके लिए मैंने बहुत सारा R&D किया है, और खाली ये जो टाइम लिमिटेड कुछ थोड़े से टाइम के लिए वो पीरियड में था कोविड का, तो इसके लिए मैं मेरा बिजनेस या अभी क्या करने का कि मैं किराना माल बेचूं या कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकता ना, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? या आई एग्री विथ यू, आपका प्रोडक्ट एक यूनिक प्रोडक्ट है, लेकिन मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जो मुझे लगता है रिदेश भाई उधर है नवांगुर का, वो लोग कोचिंग क्लास करते थे। कोचिंग क्लास जो कोविड के टाइम करना मुश्किल था, उनको ऐसा लगा लोगों को क्या चाहिए, वो देख के उन्होंने ढाबा सर्विस शुरू किया उस समय। एंड उनमें वो स्किल्स था, उनको मालूम था एक परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक टेम्पररी अपॉर्चुनिटी है, उसमें पैसा कमाना है। इज अ काइंड ऑफ सीजनल। सो पैसा कमाने के लिए नहीं था, वो भी एक प्रकार का सपोर्ट लोगों को देना। लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था, बहुत सारे लोग दे घर में है, किराना दुकान ओपन नहीं था। सो उन्होंने बोला, जो उस समय उनको क्लिक किया, क्यों नहीं ये सर्विस लोगों को दे, उसमें हमारा भी थोड़ा कमाई हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है। बाद में उन्होंने कंटिन्यू किया नहीं, लेकिन उन्होंने बाद में अभी भी वो ढाबा सर्विस कंटिन्यू है, लेकिन वो नहीं कर रहा है, वो अभी वो कोचिंग क्लास का शुरू किया है। सो मुझे लगता है मैं इस प्रकार का स्टोरीज ऑल्सो स्लाइटली शिफ्टिंग द अपॉर्चुनिटी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पूना में जो IT सर्विस, IT में
काम करने वाले बहुत सारे लोग कोविड के टाइम वेजिटेबल का बिजनेस शुरू किया। घर में वेजिटेबल नहीं मिल रहा था, उन्होंने 1 किलो का वेजिटेबल पैक करके घर जो जो हाउसिंग सोसाइटी में जाके बेच के पैसा। See, the issue was we can also look at maybe a seasonal business or a short-term business, and probably that also would have sustained you, and also business would not have gone into bottom. हमको देखना पड़ेगा बिजनेस में एक ही चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है, फंड फ्लो, द कैश फ्लो। कैश फ्लो कितने आते रहता है उतना बिजनेस हमारा पक्का होगा। जब कैश फ्लो कम हो गया बिजनेस में प्रॉब्लम है। सो क्या हो गया चिदम्बर, आपका 2 साल का कैश फ्लो कम हो गया, लेकिन एक दूसरा प्रकार से वो कैश फ्लो ला सकता था, वो अपॉर्चुनिटी को आपने देखा नहीं। सही है ना? सो सी आई थिंक एवरी बिजनेस सबसे महत्वपूर्ण चीज है कैश फ्लो। मंथली मेरा अकाउंट में पैसे आ रहे, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, इसके बारे में हमको सोचना है। ओके, थैंक यू चिदम्बर। Probably Josna, we may have to allow the people to unmute. Yeah. विनोद पाटिल हैंड रेज किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विनोद का अनम्यूट करना। Look, I mean, Josna, can you unmute him? यस जी बात आवाज आ रही है सर? Yes, विनोद। हाँ सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ जो कि जो चांस मिलता है, जो संधि मिलती है हमारे को, जैसे कोरोना में अपने कुछ लोगों ने अपना बिजनेस गंवाया है। हमारा एक अनुभव मेरा ऐसा है कि हमने वो टाइम पे सब्जी या ऑनलाइन पे घर पे बेचे थे, हमने घर पहुंच सब्जियां। Yeah. हाँ, सब्जियां और टिफिन हमने बेचे थे, तो हमने ना नफा ना तोटा इस बेस पर हमने सब्जी बेची थी। तो 4-6 महीने तक के हम लोगों ने ऑनलाइन सब्जियां बेची थी। तो हमने वो टाइम पे ये क्या मिल रहा है, मैंने ये सोचा कि लोगों को मदद कैसे किया जाए, और उस 6 महीने में हमने 500 लोगों से कांटेक्ट हुआ। 500 लोगों से पूरा नंदुरबार सिटी में जो लोग पहचानते नहीं थे वो भी पहचानने लगे, ग्राहक मिले। और जब मैंने ये पापड़ का, मेरा बिजनेस पहले से छोटा मोटा शुरू होता, लेकिन मैंने जब शुरू किया तो 500 लोग एक साथ में मेरे से ज्वाइन हुए। तो उसका मेरा बेनिफिट ऐसा हुआ कि 2 साल में काफी लोग मेरे से जुड़े और बहुत अच्छा तरह से मेरा बिजनेस भी हुआ। तो अब मैं ऐसा ही कह सकता हूँ कि भाई हर वक्त हर समय में हमें प्रॉफिट मिलेगा या पैसों के लिए काम करना चाहिए, ऐसा नहीं रहता है। तो जो जैसा चांस मिले तो लोगों से ग्राहक कैसे अपने से ज्वाइन हो जाएंगे, ये सोचना चाहिए। वेरी गुड जी, थैंक यू। प्रभाकर जी ने अपना हैंड रेज किया है, आप अपना बात कह सकते हैं। सर नमस्कार सर। या सर प्रभाकर बात कर रहा हूँ। सर पिछले 1 महीने के पहले मैंने रावेत से महावीर ट्रेडिंग कंपनी है एक, रावेत में पिंपरी चिंचवड में, वहां से हमारे एक गांव में जो महिला है ना, उनके लिए जो पेपर डिशेस रहते हैं ना, जो कार्यक्रम में या लग्न समारंभ में जो यूज करते हैं, तो वैसा वाला हमने खरीदा था। सर बात यह है कि अब जब उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ओवरऑल कच्चा मटेरियल का जो भी प्राइस है और मतलब मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उन्होंने जो बोला था कि हम इस रेट से हम खरीदेंगे, तो उसमें लगभग अभी देखा जाए तो ना सर, उस लेडी को सिर्फ और सिर्फ जो मतलब उस डे का जो रोजंदारी रहता है ना, जो 100-150, तो इतना ही पैसा मिल रहा है। सर अभी उनका ये पहला वाला बिजनेस है, मैं वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो सर इसमें वो प्रॉफिट बेस देखना चाहिए कि क्या उस दिन का उनका रोजंदारी पड़ रहा है, उनको मिल रहा है, तो इसमें समाधान नहीं होना चाहिए। प्रभाकर मुझे समझ गया, लेकिन मुझे लगता है ये बिजनेस है क्या, जो व्यक्ति ने उनको
एक काम दिया काम करने के लिए, और जो काम का जो वेजेस वो दे रहे क्या, और उनका खुद का बिजनेस है क्या? नहीं सर, ये उन्होंने खुद उन जो भी कुछ मशीन खरीदा है उस मशीन के लिए लेकिन वो उन्होंने इसका विक्रय किससे करे? जो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो किसको दे रहा है? और उसी ट्रेडिंग कंपनी को दे रहा है। वही मैं बोलना चाहता हूँ, इसलिए उनका खुद का बिजनेस नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उनका मिशन दिया, मिशन देने के बाद बोला भैया तुम मुझे काम करके दे दो। ओ, वो रियली एंटरप्रेन्योर है क्या, और रियली जो उनके लिए काम कर रहे हैं क्या? क्यों वो प्रोडक्ट दूसरा किधर भी बेच के पैसा क्यों नहीं कमा सकता है? यस सर, उस पे हम काम कर रहे हैं सर अभी, है ना। Absolutely. So it उनका appears खुद का that मार्केटिंग और ब्रांड absolutely, absolutely. So मुझे लगता है आज अभी क्या कर रहा है, वो व्यक्ति ने क्या किया, वो व्यक्ति ने वो मिशन उनके साथ भेजा, बोला तुम बना के दे दो, और बनाने के लिए जो वेजेस वो दे रहा है, ₹2, ₹2 पर पीस और इवन ₹1 पर पीस, वो खरीदता है। वो मार्केट में रियल एंटरप्रेन्योर जो लेडी नहीं है, रियल एंटरप्रेन्योर जो दूसरा आदमी है। सही है ना? बराबर। या सो हम वो माइंडसेट कैसे बदलने के लिए आपको उसके वो लेडी के साथ काम करना पड़ेगा। इसमें देखा जाए तो सर उनका मार्जिन जो लेडी बना के दे रहे हैं इसमें मार्जिन तो कुछ भी नहीं है। वही या। चीज उन्होंने गांव के शॉप में भेजा ना, देंगे ना तो बहुत कुछ उनको उसमें प्रॉफिट मिल सकता है। प्रभाकर वो लेडी का जो रॉ मटेरियल कौन दे रहा है? वही ट्रेडिंग कंपनी जो जहां से Yes, इसलिए she is not an entrepreneur. She is not an entrepreneur. वो उनके लिए काम कर रहा है। अभी क्या करने का, उनको देखना पड़ेगा वो रॉ मटेरियल किधर मिलेगा, वो Yes. उनको बना के दूसरे मार्केट में बेच के ज्यादा पैसा कमाने के लिए कोशिश करना। ओके, वी कैन टॉक अबाउट दैट, नो इश्यू प्रभाकर। ओके, और अंकित सरकार, आपने हैंड रेस किया है, आप अपना बात रख सकते हैं। अंकित, या First of all, good evening, sir. I am a student of biotechnology from Adamas University. मेरा जो क्वेश्चन था, what is the difference between private limited company and proprietorship? और पहले जो स्टार्टअप खोलना चाहते हैं उसको प्रोप्राइटरशिप में खोलना अच्छा रहेगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होके खोलना अच्छा रहेगा? Okay, now see, company, different types of company, business का types है। ये के सबसे शुरू में एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी, प्रोप्राइटरशिप मीन्स आपका है एंड आप उसका प्रोप्राइटर है। सो आपका शोपा एक्ट और जो एग्जिस्टिंग रूल्स और रेगुलेशन है और इवन एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करके प्रोप्राइटर आपका नाम पर बिजनेस शुरू कर सकता है, लेकिन डिपेंड्स अपॉन किस प्रकार का बिजनेस है। दूसरा है पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप पे दो लोग पार्टनरशिप करेंगे, उधर एक पार्टनरशिप एग्री करेंगे, ओके तुमको इतना शेयर मिलेगा, तुमको इतना प्रॉफिट मिलेगा, वो दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकता है। तीसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी, इसको बोलता है LLC। LLC इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड है, देन इट इज बिकम ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दो प्रकार का है, मल्टी डायरेक्टर, देयर कैन बी मोर देन वन डायरेक्टर। नाउ गवर्नमेंट ने शुरू किया है सिंगल डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, so the entire company can be owned by a single director, there is no need of, so it all depends upon आपको बाद में क्या चाहिए। so for example आपको ये किस प्रकार का आपका बिजनेस होगा, किस प्रकार आपको बिजनेस लेके जाना, उसके आधार पर होगा। नाउ ये पूरा इसमें फर्क क्या होगा, जो पार्टनरशिप जो प्रोप्राइटरशिप में एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं होगा, इट इज ओनली यू नीड द लीगलिटी इज वेरी लिमिटेड। आपको ITR फाइल करना है, ज्यादा कुछ करने का नहीं। आपको कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, साल में इनकम टैक्स को ITR भरना, इनकम टैक्स रिटर्न भरना। लेकिन आपको कंपनी शुरू करना है,
आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस करना पड़ता है। ओके, इसका ऑडिटिंग होना चाहिए, उसका बिजनेस होना चाहिए, उसका पूरा। सो व्हेन यू स्टार्ट, आपको ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, द compliances are more. Now a proprietor, the legal compliances are less. सो आपको लगता है भविष्य में आपका कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ 100 करोड़, देन मैं बोलना चाहता हूँ सिंगल डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करो, सिंगल डायरेक्टर। आपको लगता है मेरा बिजनेस इज ओनली मे बी 30 लाख 40 लाख, देन प्रोप्राइटरशिप इज बेटर। तो आपके ऊपर है। शायद मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारा 3rd और 4th सेशन में एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट सेशन ले लेंगे, वो पूरा लीगल के बारे में आपके साथ बात करेंगे। उस समय ये प्रश्न आपको पूछ सकता है और हम शायद इस समिट में मिलेंगे, हम बातचीत कर सकता है। अंकित, इज ओके? Thank you, sir. Thank you. या और किसी को कुछ पूछना है? कश्मीर, आपने हैंड रेज किया था, आपको कुछ पूछना था? No, sir. Good evening, sir. Sir, my question. Hello. Hello? Sir, is my audio? Is my voice audible? Yeah, it's audible. It's coming from far, like. Yeah. My name is Avintak. I'm founder and tech of Electra Minds Innovation Limited. Actually, my question is that you have explained in your PPT that you have thematics area in 5 different segments. But actually, my business is related to home automation. It's related to technology. So IT. No, it's in technology. Okay. Yeah, science and technology. So actually, I want to know about thematics area, because you have explained that you have micro business, IT and innovation, agri-based, social impact. So is there any technology related segment in your thematics area? The technology this will be part of the IT and innovation. It's an innovation and technology that will be part of that. No problem. Okay, sir. Yeah, thank you. Yeah. Okay. I mean, today is the first day, and tomorrow onwards again 6:30 we can come for next maybe 10 sessions. बहुत अच्छे स्पीकर्स सामने आएंगे और आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिलने के लिए हम काफी लोगों को लेके आ रहे हैं। जो लोग हमारा ऑनलाइन में है, जो लोग हमारे एस समिट में नहीं हमको मिलेगा, वो लोगों को हम ऑनलाइन में लेके आ रहे हैं। सो आप प्लीज डोंट मिस इट। एवरी डे 6:30 to 8 o'clock हमारा सेशन रहेंगे। प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट, क्वेश्चंस पूछिए, सीखने के लिए कोशिश कीजिए। धन्यवाद।